Hello, students. Welcome to the SST class. I hope you all are doing very good. I hope you are in all pink of your health. So, without wasting time, let's start our class. So, students, today's chapter is 12. Chapter 12 Agriculture and Industries. So, in this chapter, we are going to study the agriculture of India, the food crops and cash crops of India, the industrial products of India, the major industries and their locations. So students, let's start the chapter. Agriculture is the main occupation of the people of our country. More than one third of the people are farmer, growing different type of crop in their livelihood. Agriculture provides food for the people and raw material for industries. Agriculture provides around one third of our national income. The rest comes from industrial and services. जो agriculture है, as we know, our country is based on agriculture. हमारे जो कृषि प्रधान देश है हम कह सकते हैं, हमारा जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर है. मोर देन टू थर्ड ऑफ आवर पीपल आर फार्मर. हमारे जो मोर देन टू थर्ड पीपल क्या है बच्चों, फार्मर्स है, किसान हैं, और जो अपनी लिवलीहुड है वो किसानी यानी कि खेती पर निर्भर करते हैं. एग्रीकल्चर प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है लोगों को, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को. ठीक है बच्चों. वन थर्ड ऑफ आवर नेशनल इनकम comes from agriculture only. The rest income come from industrial or services sector. Here we can see the picture of an agriculture. Here, this is a farmer. He's farming. He's working in his field and with the help of these two animals. Next, soon after independence, India introduced 5-year plans to modernize agriculture. Projects were set up to increase facilities for irrigation. Factories were set up to produce good quality fertilizers. मतलब जब जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 5-year प्लान टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए 5-year प्लान शुरू किया इंडियन गवर्नमेंट ने. प्रोजेक्ट्स फॉर सेटअप इंक्रीज फर्टिलाइजर्स फॉर इरिगेशन के फर्टिलाइजर को इंक्रीज करने के लिए जो भी सारी चीजें थी वो प्रयोग की गई, यानी कि स्टार्ट की कर दी गई, और फैक्ट्रीज सेट कर दी गई हैं गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए. ठीक है बच्चों. और ये सारा 5-year प्लान्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था. एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स and universities made research on new high yielding variety seeds. Community projects provide technical guidance to the farmer. All these efforts have resulted in high yield food grains, milk and other agricultural products. एग्रीकल्चर रिसर्चेस जो इंस्टीट्यूट थे, यूनिवर्सिटीज थे, उन्होंने क्या किया, रिसर्चेस किए, नए हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स बनाए और कम्युनिटी को जो एजुकेट किया, उनको बहुत ज्यादा जागरूक किया, उनको गाइडेंस दिया कि कैसे आप खेती को, अपने एग्रीकल्चर को और इम्प्रूव कर सकते हो, फील्ड में क्रॉप्स को और ग्रो कर सकते हो. ये सारे एफर्ट्स ने क्या रिजल्ट दिया बच्चों, ये सारे एफर्ट्स में रिजल्ट दिए जो फूड ग्रेन है वो भारी मात्रा में हमारे पास वी वर एबल टू ग्रो. एंड मिल्क प्रोडक्ट हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, हमने बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट जो है दिया था, बहुत अच्छा टारगेट हमने अचीव किया था. नाउ let's have a brief idea of our progress in the field of agriculture. India has a favorable climate for growing crops. The soil is fertile and we have sufficient irrigation facilities too. So farmers grow many crops throughout the year. Food crops are grown to feed the people of country. The main food crops grown in India are rice, wheat, millet, pulses, cash crop grown for selling in the market. They help the farmer to earn money.
The main cash crops are sugarcane, jute, oilseed, cotton, tea, coffee, coconut and spices. तो चलिए इसके लिए हम इसके बाद इसके जो ब्रीफली एक हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि किस तरीके से सारे जो टारगेट से इंडिया के गवर्नमेंट ने, इंडिया के किसानों ने अचीव किया था. सो इंडिया के पास क्या है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है फसलों को उगाने के लिए, टू ग्रो क्रॉप्स. इंडिया का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, इंडिया की सॉइल बहुत अच्छी है एंड फेवरेबल सॉइल, फेवरेबल फीड और इरिगेशन के लिए भी अच्छे जा रहे यहाँ पर व्यवस्था है, साधन है. ठीक है बच्चों, इसीलिए जो हमारे कंट्री में, इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से हम फूड ग्रो कर पाए हैं और हमारी जो सारी टेक्निक्स थी जो हमने अभी 5 ईयर प्लान्स में अपनाई थी वो सारी वर्कआउट कर गई यहाँ पर. एंड वी स्टार्टेड ग्रोइंग एंड मेनली we succeed in growing rice, wheat, millets, pulses, etc. And cash crop are grown for selling in the market. They help farmers to earn money. What? Cash crops. ठीक है बच्चों. Now main crops are in India: sugarcane, jute, oilseed, cotton, tea, coffee, coconut and spices. So India is always famous for spices. Spices are main ingredient in India. So next, food crops. Wheat is the most consumed cereals in the north part of our country. It is a winter crop. The areas growing of wheat are Punjab, Haryana, west part of Uttar Pradesh and the Malwa region in Madhya Pradesh. Rice is the second most important cereals in India. It is the staple food of people living in the eastern and southern part of India. Means most of the people in India consume wheat as a main cereals, as a main food. After that they consume rice. जो गेहूं है और जो चावल है, ये क्या है बच्चों, मेन ग्रेन से, मेन फूड से, क्रॉप के जो ग्रो करते हैं इंडिया में फार्मर्स, और ये क्या है, मेन फूड है इंडियंस का. ठीक है, और ये किस किस जगह में मेनली हम लोग जो वीट है वो मेनली किस किस एरियाज में वी ग्रो पंजाब, हरियाणा, वेस्ट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मालवा रीजन इन मध्य प्रदेश. एंड राइस कहाँ उगता है बच्चों? राइस उगता है बच्चों हमारे जो लिविंग साउथ ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और यहाँ पर बहुत अच्छे से हम लोग राइस खाते हैं. वी ईट राइस विद हैप्पीनेस. राइस इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन वेस्ट बंगाल, असम, कोस्टल प्लेन्स, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. देखो बच्चों कहाँ उगता है, हमने अभी जाना है. कहाँ? वेस्ट बंगाल, असम, कोलकाता, कोस्टल प्लेन्स, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. It is also being processed in Punjab and Haryana where irrigation work is abundantly available. मतलब पंजाब और हरियाणा में भी ये उगाया शुरू हुआ है और बहुत अच्छी मात्रा में उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इरिगेशन के जो साधन है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, गुड इरिगेशन वी कैन प्रोवाइड देयर. Some rice is also grown in eastern part of Madhya Pradesh. Over 4,000 varieties of rice are grown in India. It is second largest producer of rice after China. जो ईस्टर्न पार्ट है हमारे मध्य प्रदेश का, ओवर 4,000 वेराइटी है जो राइस की वी ग्रो इन आवर कंट्री एंड वी आर द सेकंड वन आफ्टर चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस. हम राइस प्रोडक्शन में सेकंड पार्ट पर है, सेकंड पोजीशन पर है आफ्टर चाइना, बिकॉज चाइना इज इन फर्स्ट पोजीशन. Millets or coarse grains included jowar, bajra and ragi. These are usually grown in areas where rice and wheat cannot be grown. Bajra, Rajasthan, Bihar, Rajasthan, Gujarat, Karnataka and Andhra Pradesh produces these grains in large quantities. मिलेट और कोर ग्रेन्स इंक्लूडेड, उसमें कौन कौन से ग्रेन्स आते हैं बच्चों? ज्वार, बाजरा, रागी आते हैं. यूजुअली ये हमारे एरियाज में जो उन एरियाज में ग्रो होते हैं जिस एरियाज में जो राइस है उसको हम कम उगाते हैं. ठीक है, इन दोज एरिया वेयर राइस इज नॉट ऑफ्टन ग्रो एंड वी ग्रो मिलेट्स इन बिहार, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश produces large grain
produces these grain in large quantities. जो बिहार, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश ये सारे क्या करते हैं बच्चों, बहुत लार्ज अमाउंट में जो है इन ग्रेन्स को जो है प्रोड्यूस कर पाते. दे आर एबल टू ग्रो दिस काइंड ऑफ ग्रेन्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी. India is the world largest producer and consumer of pulses. Pulses include lentils, दाल जिसको बोलते हैं दाल, सच एज मूंग, मसूर, अरहर एंड ग्राम यानी चना. जो इंडिया है वो इंडिया के वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है. किसका बच्चों, दाल का, पल्सेस का. और पल्सेस यहाँ पर कौन कौन से ज्यादा फेमस है इन आवर कंट्री? द फेमस पल्सेस, सम फेमस पल्सेस आर दाल, मूंग, मसूर, अरहर and gram dal. We can see in this picture there are variety of grains included pulses, grain, rice and wheat, etc. Now cash crops. So here cash crops. We need oil for cooking. Mustard, groundnut and coconut provide edible oils. Mustard is commonly grown in the area situated for cultivation of wheat. Gujarat produces large quantity of groundnuts. The coastal region commonly use coconut oil for cooking. अब कैश क्रॉप में कौन से आते हैं बच्चों? We need oil. We need oil for cooking, right? Mustard, groundnut, coconut provide us edible oil. मतलब इनसे हमें क्या मिलता है? खाना बनाने के लिए जो है वो तेल हमें इनसे मिल पाता है. जो मस्टर्ड है वो कॉमनली एरियाज में ग्रो किया जाता है जहां पर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट होता है. गुजरात प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्राउंडनट और कोस्टल एरियाज में दे यूज कोकोनट ऑयल फॉर देयर कुकिंग ऑयल. Jute and cotton are fiber crops. Jute is used for making rope, sacks. Cotton is used for making clothes. Jute grows best in West Bengal. Cotton is cultivated in the black soil region of Maharashtra. Cotton is also grown in Punjab, Rajasthan, West Bengal, western part of Madhya Pradesh and Tamil Nadu. Another food crop grown in India is sugarcane. India is world's largest producer of sugarcane. मतलब बच्चों जो जूट है, कॉटन है, ये क्या है बच्चों? फाइबर क्रॉप्स है. इनसे क्या मिलता है हमें? इनसे हम रोप्स बनाते हैं, रस्सियां बनाते हैं, बोरियां बनाते हैं. कॉटन यूज होता है हमें कपड़े बनाने के लिए. जूट ग्रो होता है मोस्टली कहां पर बच्चों? वेस्ट बंगाल में. कॉटन इज कल्टिवेटेड इन ब्लैक सॉइल, मतलब वो काली मिट्टी में मोस्टली उगता है, जो कि किस रीजन में मोस्टली उगता है? महाराष्ट्र में. कॉटन क्या होता है? कॉटन पंजाब राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में भी उगाया जाता है. तमिलनाडु और कुछ एरिया जो तमिलनाडु के, वहां पर भी जो क्या है? कॉटन उगाई जाती है, क्योंकि वहां पर ब्लैक सॉइल अच्छे से फर्टाइल वहां पर प्रोवाइडेड है. अनदर फूड क्रॉप है हमारे इंडिया में जो है क्या? शुगर केन. शुगर क्या है? इंडिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. शुगर केन में इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. ठीक है. बट द शुगर कंटेंट इन आवर वेराइटीज इज नॉट हाई. Sugarcane is grown in the state of Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra and Tamil Nadu. Our plantation crop include tea and coffee. Tea is grown on the slope of West Bengal, Assam and Nilgiri Hills, जो कि कहाँ है बच्चों? कर्नाटका में है. हमारे जो शुगर कंटेंट है, जो हमारा शुगर कंटेंट है इन आवर वेराइटी इज नॉट हाई, कुछ ज्यादा हाई वेराइटी में नहीं है. शुगर केन एक ग्रो होता है स्टेट में, किन स्टेट्स में ग्रो होता है बच्चों? तो वो ग्रो होता है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. जो हमारा प्लांटेशन है क्रॉप का, और वो क्या इंक्लूडेड, उसमें क्या क्या और इंक्लूड करते हैं? टी और कॉफी भी इंक्लूड करते हैं. जो टी है वो हमारे स्लोप्स में उगाई जाती है और कॉफी भी बंगाल, असम और नीलगिरी हिल्स में, जिनके स्लोप्स में वहां पर जो द एनवायरमेंट ऑफ दैट प्लेस इज very friendly to grow tea and coffee, so that's why we grow their coffee and tea. Coffee and cocoa are produced in Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. Malabar coast produces the best spices like pepper, cardamom, cinnamon, chilies and ginger, etc. It was the lure of spices that brought European to India centuries ago.
मीन्स जो कॉफी है, कोको है, जो मोस्टली प्रोड्यूस होता है कहाँ पर, इंडिया में, कर्नाटका में। तमिलनाडु एंड केरला में क्या है, वो स्पाइसेस का कटोरा है, वहां पर बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ स्पाइसेस होते हैं, जिसमें मेनली क्या होते हैं, उसमें मेनली पेपर होते हैं, कार्डेमन होते हैं, सिनेमन होते हैं, चिलीज होते हैं और जिंजर होते हैं। और यही वो स्पाइसेस है जिन्होंने उनको यूरोपियंस को मैनी सेंचुरीज अगो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था इंडिया में आने के लिए और यहाँ पर व्यापार करने के लिए। ठीक है, in India we have two main crops seasons. Rabi crops such as wheat and pulses are grown in winters and harvested in the summer months. Kharif crops such as rice, maize, jute and cotton are grown in summer and harvested in winter. Our total agriculture production has increased many times since independence. This is due to the following factors. इंडिया में दो काइंड ऑफ क्रॉप्स जो है मेनली ग्रो की जाती है, रबी एंड खरीफ। रबी में वो क्रॉप्स आते हैं जैसे वीट, पल्सेस जो ग्रो की जाती है और वो विंटर में ग्रो की जाती है और हार्वेस्ट की जाती है समर्स में। खरीफ जो है वो क्रॉप, उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती है बच्चों, उसमें आती है राइस, मेज, जूट, कॉटन। और वो कब ग्रो की जाती है, विंटर में, वो समर में ग्रो की जाती है और हार्वेस्ट की जाती है इन विंटर्स। टोटल एग्रीकल्चर ने, हमारे एग्रीकल्चर ने आफ्टर इंडिपेंडेंस इट हैज जम्प्ड अ लॉट। उन्होंने बहुत ज्यादा जंप किया है, बहुत अच्छी क्वालिटी के उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस किया है, एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस कर पाए। बहुत उन्नत किस्म के हमारे पास बीज है और ग्रेन से है। नाउ वी आर एबल टू ग्रो वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स। एंड ये सब क्यों हुआ, लेट्स डिस्कस with few points. More land has been bought under irrigation, use of manure and fertilizers, use of tractor and other modern machines, use of better quality of seeds. मतलब बच्चों पहला क्या यूज किया हमने, कैसे कैसे हमने इम्प्रूव किया अपने प्रोडक्शन को फील्ड्स में, क्रॉप्स में। पहला हमने क्या किया बच्चों, हमने इरिगेशन के अंदर बहुत सारी जमीन थी, जो जगह लैंड ऐसे थे, हमारे फील्ड ऐसे थे जहां पर इरिगेशन पॉसिबल नहीं हो पाता था, वहां पर हमने इरिगेशन को पॉसिबल बनाया। फिर उसके बाद मैन्युअर फर्टिलाइजर्स हमने यूज किए अपनी क्रॉप्स में। देन ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न मशीन्स वी यूज्ड फॉर आवर क्रॉप्स टू कल्टिवेट आवर क्रॉप्स। or use of better quality of seed. We started using better quality of seeds. If the seeds is better quality, then the crop will also be best quality. So after that, industrial products, the resources which natural has given us fulfill most of our needs. Many of them resources however cannot be used directly. जो हमें resources हमारी अर्थ ने, हमारी प्रकृति ने हमें दिए हैं, वो मोस्टली क्या है, हमारी नीड्स को डायरेक्टली हम उसको यूज करके अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। Raw material cannot be used directly. To be able to use them, we need to convert them into finished goods such as flour, cloth, tea, coffee, फर्नीचर एंड यूटेंसिल्स। जो हमें रॉ मटेरियल मिलते हैं हम उनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उन रॉ मटेरियल से हमने अपने यूजेबल थिंग्स को, वी कैन क्रिएट आवर यूजेबल थिंग्स बाय यूजिंग दैट रॉ मटेरियल लाइक फ्लोर, cloth, tea, coffee, furniture and utensils, etc. We can see here it's written raw material are converted to finished good by an industry. Thus we can say that industry is a place where goods are produced from raw material. There are many type of industries in India. और इसको रॉ मटेरियल से फाइन गुड्स में बदलने में हमारी कौन हेल्प करता है बच्चों, हमारी हेल्प जो करता है वो कौन करते हैं, इंडस्ट्रीज हेल्प अस टू convert these raw material into fine goods so that we can use them into our daily use. और जहां पर ये प्रोड्यूस जो है बनाए जाते हैं उसे तो हमने जान लिया, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, वी कॉल इट इंडस्ट्री। वी कैन से इंडस्ट्री इज अ प्लेस where the goods produced for daily use. Now there are many type of industries in our country. Now cotton industries. These industries are set up by the people in India houses. A few people work with simple tools and use raw material available nearby. Some such industries are weaving cloth on handlooms
extracting oil, grinding flour, handicrafts, making toys, cane furniture and leather goods. केन फर्नीचर एंड लेदर गुड्स. अब जो कॉटन इंडस्ट्रीज है बच्चों वो क्या करती हैं, वो सेटअप होती हैं जो लोकल पीपल, जो लोकल वहाँ के जो लोग हैं लोकल पीपल के द्वारा वो अपने घरों में भी सेट हो जाती हैं और उसमें बहुत सिंपल टूल्स, पीपल यूज वेरी सिंपल टूल्स टू मेक देयर फाइन प्रोडक्ट. सो नाउ उनमें से जो क्या बनाते हैं, आफ्टर वीविंग, आफ्टर निटिंग, दे क्रिएट, they made cloth handloom, they made cloth on handlooms, extracting oil निकालना, हैंडलूम से क्लॉथ बनाना, आटा पीसना, हैंडीक्राफ्ट्स बनाना, मेकिंग टॉयज बनाना, क्रेन और फर्नीचर बनाना विद leather and other goods. You can see here, this is the picture of a mustard oil machine. They are the people extracting oil from the machine from mustard seeds. Small scale industries. There are a few workers employed and use small machines. People work in a small factory. Such industries make utensils, garments, hosiery items and electrical and plastic goods. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है, हमारी डेली यूसेस की जो चीजें हैं वो बनाती हैं. और वर्कर एम्प्लॉय कहते हैं, वर्कर जो होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं वो स्मॉल मशीन्स को यूज करके इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं. वो सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं सच एज गारमेंट्स हो गया, हिस्टोरिकल हॉइसर आइटम्स हो गया, गारमेंट्स हो गया, हॉइसर आइटम्स हो गया, इलेक्ट्रिक एंड प्लास्टिक गुड्स जो है वो सब स्मॉल फैक्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है दे प्रोड्यूस. वी कैन सी हियर, this is a garment company in the picture and the people are working here with small machines. Now, large scale industries, thousands of workers employed in these industries, the goods are produced in big machines and large quantity. High skilled labor is needed in large scale industries. Large scale industries include textile, iron and steel mills, oil refineries, chemical plants and factories manufacturing automobiles and railway engines. These industries are generally located in areas where raw material and sources of power easily available in abundance. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है वो बड़े बड़े मशीनों पर, बड़े बड़े कारखानों पर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर काम होता है और उसमें हाई स्किल जो लेबर होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उनकी जरूरत होते हैं. ठीक है बच्चों, और इसमें आयरन, स्टील मिल और ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स एंड फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स एंड रेलवे इंजन जो है रिप्रोडक्शन इनका किया जाता है. दे प्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ ऑल थिंग्स इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. और दीज इंडस्ट्रीज, और ये जो सारी इंडस्ट्रीज है ना, दीज इंडस्ट्रीज मेनली सिचुएटेड इन दैट एरिया वेयर जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज्यादा इजीली हमको मिल सके और बहुत सारा क्वांटिटी में मिल सके, प्रचुर मात्रा में मिल सके, वहीं पर ये ज्यादातर सिचुएटेड होती हैं. सो नाउ हियर वी कैन सी in this picture, this is a company, this is a large scale industries, a textile mill. Here there you can see the big machines over here and the workers are working on it. So students, we have understood about our India, about our Indian agriculture, about our Indian industries, how they form, how they grow, how our government help us, how we can make them more stronger. So with this, let's finish this class here only. I'll see you in the next class. Till then, study hard. Take care. Bye-bye.